propagation. Look here. This was the word rectilinear propagation. So this term was told by me in the class. Is there anybody who can tell what is the meaning? Yes, one guy is raising the hand in the Grammy section. Please come on the mic. Sweet student in Grammy section. Please come on the mic. What is the meaning of rectilinear propagation? The light rectilinear propagation shows that the light travels in a straight line. Very good. Excellent reply. Full marks. Shabash. So one sweet student from the ME section told me, sir, if this is your source of light and you switch it on from the source of light, the ray of light always travels in the straight line as its inherent property. So what is the rectilinear propagation? Property of ray of light to travel in same straight line. Straight line. Look, this was the thing which last time told me. One student in my previous session told me, sir, I can change the path of this straight line. Ray of light traveling in the straight line, I can change its path. I said, how? Kehta, sir, place a mirror here. If you will place a mirror here, light will go to this side. तो मैंने कहा बेटे लाइट इधर को गई तब भी तो ये सेम तब भी तो ये स्ट्रेट लाइन में है. स्टूडेंट टोल्ड मी सर आपने तो बोला सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन और है, ये सेम स्ट्रेट लाइन और है. सो मैंने कहा बेटे आपने जब लाइट को इधर से इधर मोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ मिरर तो आपको मिरर की हेल्प लेनी पड़ी ना, लाइट अपने आप तो नहीं मुड़ी ना. कहता है यस सर अपने अपनी मुड़ी मिरर की मदद से ली. तो मैंने कहा इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को हमें और अच्छे से लिखना चाहिए. प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन द सेम स्ट्रेट लाइन. शाबाश, इसमें ऐड होना चाहिए इट कैन नॉट डेविएट और बेंड बाय इट्स ओन. बाय इट्स ओन. हम इसको मिरर रख के या किसी और तरीके से मोड़ सकते हैं लेकिन ये अपने आप नहीं मोड़ेगी. देखो क्या लिखा टीचर ने, बाय इट्स ओन. तो जो बच्चा ये वर्ड्स साथ में लिखेगा उसका डेफिनेशन ज्यादा अच्छा होगा. शाबाश. एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन दिस लैंग्वेज. प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट डेविएट और बेंड बाय इट्स ओन. ठीक है. हाँ, मिरर की मदद से, प्रिज्म की मदद से, ग्लास स्लैब की मदद से वी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, लेकिन अपने आप नहीं ये रे ऑफ लाइट चेंज. राइट. सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के ऊपर बेस्ड. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बेस्ड हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा था बेटे, हमने क्या क्या सीखा था. एक सीखा हमने रिफ्लेक्शन, ये सीखा बेटे. राइट. On the basis of rectilinear propagation we learned ये रिफ्लेक्शन. और क्या सीखा बेटे लास्ट टाइम हमने, शैडो फॉर्मेशन. शैडो फॉर्मेशन व्हाट इट. और क्या सीखेंगे हम, हमें सीखना चाहिए पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा. और क्या सीखना चाहिए, ल्यूनर एक्लिप्स.
ल्यूनर एक्लिप्स। और क्या सीखना चाहिए? सोलर एक्लिप्स। So many things we have explained. Okay? तो today we will discuss these things. ये हमने डिस्कस कर लिया लास्ट टाइम, ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया. Let's concentrate on pinhole camera. Pinhole camera. Are you all ready? Let's see. ये pinhole कैमरा हम कैसे बनाते हैं. देखो बच्चे, everybody please write down pinhole camera. आपको मैं दिखाऊंगा भी. आई विल शो यू ऑन द टेबल. देखो पिन होल कैमरा में दिखाऊंगा आपको. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड इट. हाउ इज इट बच्चे? यू मस्ट हैव बॉट सम शू बॉक्स. आपने शूज खरीदे होंगे तो आपको साथ में कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है लाइक दिस. ऐसा आपके पास बॉक्स होता होगा, राइट? क्लियर बेटे? और इसी तरह से आपके पास एक और बॉक्स होना चाहिए, इससे जरा सा छोटा, little less than this. Let me draw that box in the white color like this. I have two boxes. White box is little smaller than yellow box, such that white box can slide into the yellow box. White box yellow box में slide कर सकता हो, sometimes inward, sometimes outward. Okay, just sliding. So what we will do beta now, listen carefully. On this face of the white box, this face, what I will do, listen, if this face is like this, let me use the white color. Suppose this is your white front face. This is the square face of the box. Okay, I will take one scale and pencil. I will place the scale here and draw the diagonal. I will draw the diagonal like this with the help of pencil. I will also place the scale this way and draw the line another diagonal. Fine. When both diagonals are drawn, I will get one point of intersection. At this point of intersection, I will make a very small hole. Okay. So what the teacher is saying, at the green spot, I will make a very small hole. This is done in the front face of the smaller box, yellow box, sorry, white box. Front face, square face of the white box, diagonals are drawn. At the point of intersection of diagonal, small hole is made. Okay. Now what to do in the second box? Listen, Mitchell. In the second box, you see, in the bigger box, yellow box, what you see, there is one last face, square face. That yellow face is like this. Okay. In this yellow face, Shabash, using a razor blade, you must be having this kind of blade with you. I am very sure you have seen this kind of blade. Razor, you can say.
Okay, this kind of blade is taken and you will cut this much piece of the cardboard. Cut out. Cut out. Okay, this portion is cut out. Now what we will do? Here you will paste the butter paper. What you will do? Here you will paste the butter paper. This is your butter paper, trace paper. Butter paper is traced. Okay. One more thing. Now both boxes will be black colored. Will be black colored. Okay. Paint black color. Paint black color. That's all. Pinhole camera is ready. You can practically make it at home. You know how it will operate now. This is how much what the teacher has told you. Construction of the pinhole camera. Construction. Once again, larger box taken, smaller box taken. On the front face of smaller box, diagonals are made at the point of intersection. Small hole is made. And on the back square face of the bigger box, yellow portion is cut out. इतना गत्ता काट दिया आपने. And there you have pasted the butter paper. Okay. So now both boxes can slide into each other. Pinhole camera is ready. Now how it will operate? Let me tell you how it will operate in the next figure. Look here, bache, how it will operate. Listen, this is your bigger box in which small box can slide, right? In the small box can slide. Now you can obtain a burning candle here. Burning candle. This burning candle will throw its light through the hole. Got it? What will happen? From the burning candle, a ray of light in the same straight line will travel following the rectilinear propagation. So from the top of the candle, top of the flame, a ray of light passes through the hole and it reaches here. Okay. Similarly, from the bottom, another ray of light. Let's change its color for better visibility. This another ray of light from the bottom of the candle reaches here. So what you will observe on the back face? Let's draw the back face. This is your back face. Agreed? In the back face, what you will get? You will see the inverted image of the candle. Inverted image of the candle. Let me draw the image. Inverted image of the candle will be obtained. Upside down. This is your flame of the candle. So what you get? Inverted image of object. What is our object? Burning candle. Burning candle is our object. So this is how the pinhole camera works. Now question arises, student says me, sir, how can we see this image? You will just stand here from the back side, image obtained on the trace paper, on the butter paper.
that image is visible from both sides, either from inside, but you cannot go inside the box. While standing at the back side of the box, you will see its image. Okay, outside the image, outside box. Who is this? Observer. Observer. Who will see this inverted image? कितने बच्चे चाहते हैं ये मैं आपको करके दिखाऊं? जो बच्चा कहता है सर प्रैक्टिकली करके दिखाओ, शाबाश, रेज योर हैंड. जो बच्चा कहता है प्रैक्टिकली, तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं बेटे. शाबाश. नाउ एवरीबॉडी हैज टू फोकस ऑन माय एक्टिविटी टेबल. एक्टिविटी टेबल के ऊपर हम इसको फोकस करेंगे. एक मिनट रुको. मेरे पास ये देखो कैंडल है. ओके, मैच बॉक्स. वी विल enlighten the candle and will use as the object. ओके, फिर से देखो, ये मेरे बॉक्स का फ्रंट है. इसके यहां पर where the teacher is touching, here there is a micro hole. ऐसे diagonals are made at the point of intersection. Micro hole is obtained. नजदीक करता हूं, देखो आपको दिखता है होल? शायद दिख जाए, शायद नहीं दिखे, शायद दिख जाए. Let me tell you once again. Here is a small hole. Okay, at the back side you see butter paper is pasted. Butter paper, trace paper. अब हम देखते हैं क्या इसके ऊपर इमेज बनता है या नहीं. Okay, so everybody please focus on my activity table. Focus on my activity table. Shabash. Let's remove the extra material because it can create the confusion to my sweet students. Shabash. Everybody look here. और focus. ऊपर. Okay, बेटे. So let me tell you what I will do. I will place the candle here. दिख ही नहीं रहा यार. सेट करो ना, ये तो आपका काम. Okay, so candle is visible, camera is visible. What I will do, I will enlighten here. Okay, I will switch off the light of the studio. This will be the only source of light. Okay, the image will be obtained on the back side, trace paper. What I will do, gradually I will make it like this. I will rotate it and will show you the image here. Once again, let me tell you what I will do. I will switch it on. Through the hole, light will go. According to the figure what we discussed on the board, there will be the image on the trace paper. We will switch off the lights and gradually I will rotate like this and I will show you the image here. Okay? So let's begin. This is our candle. It is enlightened. Now it has become the source of light. Okay, so let me see. So in front of it is it placed. Image is obtained here. Now I will switch off the lights and will rotate the things and show you the image. Switch off every light. Okay, so this is your candle. Just look at. Teacher is rotating. So this is the back side. Okay, देखते हैं बनता है या नहीं. देखो इमेज बन रहा है. Have you seen? This is the image on the trace paper. Candle is in my, देखो candle is in my hand. It is not the direct candle. It is the image of the candle on the trace paper. Once again, you see, this is your candle. Switch on the light. Let me explain once again. I will show you once again by switching on light. Switch on the light. Once again, let me tell you what I am doing.
I am making the image here. Gradually I rotate it like this and show you the back side. अगर पूरी लाइट है तो आपको इमेज नहीं दिखता. ओके, ये देखो मैं आपके सामने रोटेट कर रहा हूं, फिर उसको आपको दिखाएंगे लाइट ऑफ करके, तो इमेज दिखेगा आपको ट्रेस पेपर पर. ओके, स्विच ऑफ द लाइट. Look here, inverted image. Wait a minute, wait a minute. Just see, ये ज्यादा विजिबिलिटी नहीं दिख रहा. बताते हैं, करते हैं. एक और दिखाते हैं, इधर से भी ऑफ करके दिखाते हैं आपको. लाइट और कम करनी पड़ेगी कमरे में बेटे. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. Some portion, but you are observing two things. One is the candle and other one is the inverted. That is the image. Okay, two photos दिख रही है ना आपको. चलो ऑन करो. ये देखो नीचे आ गया. So we have explained you on the board how it will be obtained. Okay, while at your home in the very dark room you will obtain. And one more thing, teacher has used only one box, right? So here I have explained you one box sliding in the other. When you will slide one box in the other, gradually you will get one image. Okay, very clear image. जैसे मैंने आपको last time समझाया था. Like this, two boxes are taken, one box is gradually slipped into another such that clear image is obtained on the what? Water box. Right बेटे? अब हमने क्या करना है? We have to discuss solar eclipse and lunar eclipse. After that, we will do the assignment. Shabash, everybody. First of all, we are going to discuss lunar eclipse. Shabash. This is again based on the rectilinear propagation of light. Lunar eclipse. इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? चंद्र ग्रहण. ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण. होता क्या है? All of you, first of all, understand this side. Everybody knows if this is your sun, SUN sun, planets are revolving around it. Like Earth is our planet. Teacher is mentioned capital E. So it is revolving around the sun. But every time you know, moon is also rotating around our Earth. So this is a moon. Moon is revolving around the Earth. Earth is revolving around the sun. So at one situations, they all three comes in the same straight line. Okay. Now question arises, what are their positions when the straight line? What will be in the center? What will be here? What will be here? Out of the three, S represents sun,
E represents Earth, M represents Moon. ओके, तो सभी बच्चे याद रखेंगे व्हाट बेटे, इन द ल्यूनर एक्लिप्स this will be the sequence. Lunar eclipse, this will be the sequence. Sun, Earth, Moon. Sam. Memory tool क्या है? Lunar eclipse is equal to Sam. सभी बच्चे याद रखना. Memory tool. Let's draw it. कैसे बनेगा? सबसे पहले अच्छे से ड्रा करते हैं बेटे. तो teacher has drawn the sun here. This is your sun. Exact sphere. Right? And now we have to draw what? Earth. So I am drawing the earth with the blue color. So let's draw it like this. This is your earth. Capital E. Earth. So I am drawing the, later I will draw the moon. Moon I will draw with the help of white color, but later. First of all, let's see what happens. The rays of light from the sun travel in the same straight line. कैसे? सभी बच्चे ध्यान से देखना. From the top of the sun, one ray of light is going here, tangentially touching to the earth. Look here, tangentially. Rectilinear propagation is followed. Okay? Similarly, from the bottom, it is touching the earth and going in the same straight line. Remember, straight line should not bend. This way, it is going this way. Okay? Now, some student ask me, sir, will there be any other light? Yes. From the top position, another tangent, which is the tangent for sun as well as earth here. Look here, going to this side. Look here, teacher is every time drawing the straight line, rectilinear propagation. Another ray of light बेटे, कहां से कहां तक? यहां से upward. Just see. So these are the rays of light being emitted by sun. In between earth comes, and in the shadow of earth, there comes the moon. There comes the moon. Okay? If I ask somebody that you are living here, suppose आपका घर यहाँ पर हो, ठीक है? Will you be able to see the moon? Not at all. Suppose आपका घर यहाँ पर हो, will you be able to see the moon? Not at all. क्यों? क्यों? Moon does not have its own light. मून तो हमें तभी चमकता हुआ दिखता है जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पड़े. तो मून के ऊपर तो इस वक्त लाइट पड़ ही नहीं रही सन की, बीच में अर्थ आ गया. सो नो लाइट इज फॉलिंग ऑन द मून, सो इट विल रिफ्लेक्ट नो लाइट. तो मून दिखेगा नहीं. दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे, भाई मून को क्या हो गया, उसको क्या ग्रहण लग गया, आज दिखाई नहीं दे रहा. कभी कभी हम आम लोगों से भी पूछते हैं, यार इतने दिन तुम दिखाई नहीं दिए, ग्रहण लग गया था तुम्हें? इट मीन्स वी आर not able to see the presence of the moon, although moon is present there, but no light is falling on the moon. That is why it is not reflecting any light. और जब रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के पास आएगी नहीं अर्थ के ऊपर, we will not be able to see the moon. इस तरह से ल्यूनर एक्लिप्स बनता है. सीक्वेंस क्या बना? सन, अर्थ, मून. तभी टीचर ने ये बोला आपको ल्यूनर एक्लिप्स में याद रखना है. कौन सा मेमोरी टूल? सैम. सैम भूलना नहीं है. सैम इज द मेमोरी टूल फॉर ल्यूनर एक्लिप्स. अब हम दूसरा देखते हैं, सोलर एक्लिप्स बच्चे. ओके, इसको हम मेमोरी में डालते हैं. लेट्स डिस्कस दी सोलर एक्लिप्स. शाबाश सभी बच्चे देखो.
सोलर एक्लिप्स में क्या करेंगे? देखो बेटे, उसमें हम क्या करेंगे? लेट मी चेंज द कलर. सोलर एक्लिप्स. What is the memory tool here? What is the sequence? Right, bete? In the sequence, you will now remember this memory tool. In the solar eclipse, it is S M E. SME. जानते हो ये गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी और मध्यम दर्जे की फैक्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो मेमोरी टूल. लेकिन यहां पर हमने याद रखना है एस फॉर सन, एम फॉर मून, ई फॉर अर्थ. दिस इज द सीक्वेंस. सोलर में. ल्यूनर में क्या था बेटे? ल्यूनर में क्या था? देखिए सभी बच्चे, ल्यूनर में था, ल्यूनर एक्लिप्स में मेमोरी टूल क्या दिया था टीचर ने? ल्यूनर एक्लिप्स में कैन एनीबॉडी टेल व्हाट वाज द मेमोरी टूल? शाबाश. SEM, ल्यूनर एक्लिप्स. सैम. और सोलर एक्लिप्स में क्या है? SME, सन, मून एंड अर्थ इंटरचेंजेस देयर पोजीशन. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ. Okay, teacher is drawing. First of all, here it is sun. S. Right? So now the teacher is showing the moon in between. So I am using the white color for the moon. Let's say white, I am drawing the moon here. So now I have to draw the straight lines, rectilinear propagation, straight lines of ray of light. Look here, from this point, one light I am drawing this. Look, it is touching the top surface, yani passing tangentially to the moon. Another, from the same point, I am drawing another line which is touching the lower surface of the moon. Just see. Okay. Now I am drawing another two lines from the symmetrically opposite position of the sun. From there, light is passing like this, bete. This time I am using the brown color. Rectilinear propagation, straight line. From the same position, I am drawing another light which is passing tangentially from the lower surface of the moon, like this. Once again, I have to erase it. I will redraw because I know if there will be no straight line, teacher will deduct the marks. In the examination, you have to use the scale. Look here, light is passing this way. Okay, so remember where our earth will be. Let me use the green color for the earth. I am drawing the earth here. Sorry, blue color. Why I am using blue color for earth? Because of large presence of the water. Water ko, that is why teacher is using blue color for the earth. Sun is given yellow color. Moon is given white color. So what we observe here, it is our earth. Okay. Now
Important thing, very important thing. Suppose you are living here on this surface of the moon, your residence is here, and I ask you whether you will be able to see the full sun. So you will say, sir, no, I am unable to see the full sphere of the sun. I will ask you why. So you will say, sir, when I am standing here, in between moon comes. So moon is smaller in size, sun is larger in size. So I will see only the boundary outer section of the moon. Outer section of the moon I will be seeing, but central portion of the sun will be blocked by the moon in between. ये बिल्कुल ऐसी बात होगी, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे बड़ी प्लेट के ऊपर छोटी प्लेट रख दी हो और मैं आपको पूछूं क्या बड़ी प्लेट सारी दिख रही है आपको? यू विल से सर नहीं, छोटी प्लेट ने उसको ढक दिया है सेंटर में से, मेरे को सिर्फ साइडों से रिंग सा दिख रहा है। तो सोलर एक्लिप्स में इस बंदे को सन एक ऐसे सर्कल की तरह दिखेगा, सेंटर से काला दिखेगा क्योंकि इन बिटवीन मून आ गया। ओके, इस तरह से ये बंदा बोलेगा आज सन को हुआ क्या है, अच्छे से चमकता नहीं है, साइडों से ही दिखा रहा है खुद को, इसको क्या ग्रहण लग गया? वेदर इट इज सोलर एक्लिप्स, वी विल टॉक लाइक दिस। ओके, तो आपको प्लेट नुमा दिखेगा। एक बात और, ये जो पोर्शन है बेटे गौर से देखो, जिस जिस पोर्शन पे टीचर इस वक्त व्हाइट लाइनें दिखा रहे हैं, व्हाइट लाइनें, इस पोर्शन पे तो बिल्कुल ही सोलर लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल डार्क रीजन है, अल्ट्रा डार्क, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, अल्ट्रा डार्क रीजन। ओके, लेकिन ये जो पोर्शन है जिस पे टीचर पिंक कलर की लाइनें लगा रहे हैं, पिंक कलर की, मजेंटा कलर बोल दो चाहे, ये जो पोर्शन है इसमें कुछ ना कुछ लाइट पहुंच रही है सन की। तो जो पिंक कलर वाला पोर्शन है दैट विल बी नोन एज सेमी डार्क रीजन। उस पोर्शन को जो पिंक वाला है, उस पोर्शन को पिंक वाले को हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा। सेमी डार्क रीजन को हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा, सेमी डार्क, वो अल्ट्रा डार्क, वेरी डार्क। ओके, तो याद रखना है पेनुम्ब्रा, अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, दिस इज पेनुम्ब्रा, दिस इज हाउ द सोलर एक्लिप्स इज फॉर्म। जिन बच्चों को सोलर एक्लिप्स समझ आ गया they will raise your hand, please raise your hand if you have understood, शाबाश। ग्रामी सेक्शन बेटे, if you have understood please raise your hand, ग्रामी सेक्शन। okay, so many students have raised their hand, very good, very good। तो अब आपका कंपटीशन शुरू है, थ्योरी कंप्लीट हो गया हमारा, राइट बेटे? सबसे पहले हम पुराने वाली असाइनमेंट निकालेंगे, पुराने वाली असाइनमेंट। ओके, जिस जो फ्रंट से ऐसे दिखती है, देखो ऐसे वाली असाइनमेंट की बैक साइड पे आ जाओ, बैक साइड पे, शाबाश। लेट्स डिस्कस द थिंग्स। वी वर डूइंग assertion reason, क्वेश्चन नंबर 13। The size and shape of the shadow depend on the angle and direction of light source, assertion reason। बोल रहे हैं आप ये बताओ कि जो कल लास्ट टाइम हमने ह्यूमन टॉय से जो एक्सपेरिमेंट करे थे बेटे, ह्यूमन टॉय से, ह्यूमन टॉय से हमने क्या बोला था? साइज एंड शेप ऑफ द
shadow depends upon the angle and direction of light. True है. Reason, shadows are longer when source of light is closer to the object. बिल्कुल सही. And shorter when the light source is farther away. बिल्कुल सही. Reason भी सही है. Okay. Reason is true. Assertion is true. Whether the assertion reason is the true explanation of assertion, yes, it is also true. True explanation also. So the option is A option. Question number 14 बेटे. Question number 14. शाबाश. दूसरी असाइनमेंट में हम कंपटीशन करेंगे. पहले वाली ऐसी कर लेते हैं. Shadows are always black regardless of the color of the object. शाबाश. ये भी ट्रू ही है, मैं अपनी तरफ से ही बता देता हूं. शैडोज ब्लैक ही होती हैं. व्हाई? बिकॉज शैडो इज दैट पोर्शन where light is not reaching, that portion where the light is blocked to reach. Reason क्या है? Color of the object affect the color of the shadow. ना, color of the object affect the color of the shadow. बिल्कुल नहीं. क्या रेड कलर या येलो कलर या ब्लू कलर ऑब्जेक्ट का शैडो को इफेक्ट करता है? इफेक्ट्स नहीं करता, कोई असर नहीं डालता. चाहे येलो रखो, इसका मतलब है रीजन इज रॉन्ग. तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे इसमें से? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. सी ऑप्शन. सी ऑप्शन. So this is your two questions in the last assignment. Everybody please note down. Note down. Shabash. Let's move to the case study. केस स्टडी को डिस्कस करते हैं. कौन बच्चा है जो क्लास में माइक पर आकर सारा पैराग्राफ पढ़ सकता है? Who has good pronunciation? एबल. एबल में एक बच्चा. शाबाश. प्लीज कम ऑन द माइक. एबल में से एक बच्चे का सबसे पहले रेज है. बेटे रीड द होल पैराग्राफ. Read the whole paragraph. In a large football stadium at night, floodlights from different angles illuminate the players on the field. Each light source creates a shadow of the player in different directions. As a result, a player standing still might see multiple shadows of themselves on the ground. Each shadow cast by a different light source, the number and position of these shadows depend on the number of lights and their relative positions to the player. This phenomenon is also observed in outdoor spaces like parks or city streets where multiple street lights create overlapping shadow, especially at night. बहुत अच्छे. बेटा प्लीज सिट डाउन. सो वेरी गुड रीडिंग. वेरी गुड रीडिंग. जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना नहीं आता, पैराग्राफ अटक लगती है बोलते बोलते, उनको एक मैं ट्रिक देता हूं. जो बच्चा मेरा ट्रिक सुनेगा वो बहुत अच्छा पढ़ेगा आगे से. जहां पर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड बोलना होता है, उससे थोड़ा सा आगे नजर को रखना होता है. थोड़ा सा एक दो ज्यादा शब्द देखने होते हैं. लाइक जैसे मैं देखूं इन ए लार्ज फुटबॉल, जब मैं ये बोल रहा हूं तो हमारी नजर कहां पर होनी चाहिए? स्टेडियम एट नाइट, इसके पास होनी चाहिए. ऐसे बोलोगे तो आपका बहुत अच्छा बोला जाएगा. लाइक दिस. In a large football stadium at night, floodlights from different angles illuminate the players on the field. Each light source creates a shadow of the player in different directions. As a result, a player standing still might see multiple shadows of themselves on the ground, each shadow cast by a different light source. The number and positions of the shadows depend on the number of lights and the relative positions to the player. देखो कितना अच्छा पढ़ा गया. सो टूल ये होता है, जो शब्द आपने बोलना है उससे जरा सा आगे देखना है बेटे आपने. अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. Which property of the light is explained by the phenomena of
शैडो फॉर्मेशन। शाबाश। कौन सी प्रॉपर्टी है जो शैडो फॉर्मेशन से एक्सप्लेन हो रही है? व्हाट इज द नेम? Nobody is raising the hand. Okay, one person only in the Arjuna section. आ जाओ बेटे माइक पर। Only one person in the Arjuna section. औरोरा में भी है, आ जाओ बेटे, तुम भी आ जाओ। Rectilinear propagation of light. वेरी गुड। अर्जुना में एक बच्चे ने पूरे स्कूल में से जवाब दिया। वेरी गुड। व्हाट इज द आंसर बाय अरोरा स्टूडेंट्स? अरोरा प्लीज स्विच ऑन द माइक एंड रिप्लाई। V1. V1. अरोरा स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन द माइक। V1. शाबाश। पूरे स्कूल में सिर्फ दो बच्चे, वन फ्रॉम अरोरा, वन फ्रॉम अर्जुना, एंड द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। एवरीबॉडी नोट डाउन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करता है कौन? कौन सी एक्टिविटी एक्सप्लेन करती है एक्सपेरिमेंटली? शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन। Okay, let's move to the next question. How the same object forms multiple shadows? एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल शैडोज क्यों बनती हैं? औरोरा में सेम स्टूडेंट। एक बच्चा का अर्जुना में एक गुड़िया। शाबाश। कम ऑन द माइक। फर्स्ट बेंच गर्ल एंड अरोरा, ओनली 2 स्टूडेंट्स। Sir, एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल शैडोज कैसे दिखती हैं? by increasing the number of light source. Very good. Arjuna answer is correct. By Aurora. Aurora student. Switch on the mic. How can you obtain multiple shadows of the same object? Sources. Very good. By increasing the number of sources. Let me tell you how. Suppose there is a person standing here. This is the person standing here. And suppose there is one light source, S1. So S1 will create the shadow here. This will be the shadow of the person by this person on the ground. Okay. Suppose there is another source of light. That another source of light is here. This is your S2. So S2 will cast the shadow here of the smaller size shadow here. Okay. Suppose there is another source of light S3 here. It will cast the shadow to this side. This will be the third shadow. So increasing the number of sources, the same person can have multiple shadows. Very good answer. Third question. Can multiple shadows of the same object has always the same size? Explain. सेम साइज होगा कि नहीं? कौन बता रहा है? कौन? अरे अरोरा में सेम स्टूडेंट। एक कितना शार्प बच्चा है भाई। आ जाओ बेटे माइक पर आ जाओ। और अर्जुन ग्रैमी में एक बच्चा इस बार मुकाबला करेगा, लास्ट में बैठा है। कम ऑन, आ जाओ बेटे माइक पे। Sir, yes. अर्जुना में भी है एक बच्चा प्यारा सा, आ जाओ माइक पे। अर्जुना में, Sir, yes. अरोरा में सर कैन Sir, मल्टी yes. सेम साइज की होंगी या अलग अलग की होंगी? क्यों? Sir, yes. सेम साइज की होंगी या अलग अलग साइज की बेटे? Because position of the sources. यस 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 यस, बहुत अच्छे। अब कौन से ग्रैमी के बच्चे ने क्या आंसर दिया था? हाँ, गुड गुड दिया था। Sir, yes. तो आप बोलोगे बेटे, ध्यान से सुनोगे। आप बोलोगे, योर अटेंशन, इसका डबल आंसर है। आप बोलोगे अगर सोर्सेज ऑफ लाइट D1 डिस्टेंस, D2 डिस्टेंसेस, है ना, D3 डिस्टेंसेस, अगर ये डिस्टेंसेस सेम भी है, इवन इफ दे आर सेम, ओके, तब भी उनकी डिपेंड करता है। कौन शैडो साइज डिफरेंट होंगे? सेम ऑब्जेक्ट
by different sources, different sized shadows. Different sized shadows. ओके, क्योंकि सोर्स के एंगल पे भी डिपेंड करता है किस एंगल से लाइट गिर रही है ऑब्जेक्ट पे, राइट? इवन इफ दे आर ऑफ सेम डिस्टेंस, शैडो साइज विल बी डिफरेंट. शैडो साइज डिफरेंट क्यों? क्योंकि उनका एंगल्स अलग अलग हुए. लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है और सभी लाइट सोर्सेस का, ये तो ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्सेस का एंगल भी सेम हो, इधर से लाइट उतने ही एंगल से इधर से, कोई डिस्टेंट इधर से, एंगल उतना ही हो, एंगल और डिस्टेंस भी उतना ही हो सोर्स का, तब जो शैडो बनेगी वो सेम साइज की बनेगी. जैसे हमारे असाइनमेंट वाले फिगर में सेम साइज का शैडो दिखा रखा है, शायद ना डिफरेंट का दिखा रखा है. अगर आपने क्या आंसर बताना है, इफ द सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर इक्वी डिस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर वन. नंबर टू, एंगल ऑफ द फॉल ऑफ द लाइट फ्रॉम एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी सोर्स ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट इज आल्सो सेम. मैं इसको फिगर से बताता हूं बेटे, ऐसे नहीं आपको समझ आना, छोटे बच्चे हो, गौर से देखो. ये ऑब्जेक्ट है, राइट? और ये एक सोर्स ऑफ लाइट S1. तो एक तो ये डिस्टेंस मान लीजिए D1 है और एक इधर सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए ये सोर्स है S2, उसका डिस्टेंस है D2. तो आप बोलोगे नंबर वन, D1 शुड बी इक्वल टू D2 इफ, एंड एक बात और, कौन सी? अगर हम यहां स्ट्रेट लाइन लगाए तो जितना एंगल इधर बन रहा है, मान लीजिए इस एंगल को बोलते हैं हम थीटा, और इधर जितना एंगल बन रहा है ये वाला, मान लीजिए इसको बोलते हैं थीटा डैश. दोनों एंगल बराबर होने चाहिए. अगर ये दोनों चीजें बराबर हो, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ द फॉल ऑफ द लाइट, तब देन जो S1 से इधर शैडो बनेगा, ब्राउन कलर वाला जो शैडो बनेगा, टीचर बना रहे हैं, ब्राउन कलर वाला जो शैडो बनेगा बंदे का, और जो F2 से बनेगा, कौन सा बेटे, जिसको टीचर बना रहे हैं ग्रीन कलर का शैडो, ये दोनों शैडो बराबर के साइज के बनेंगे. देन रिमेंबर, शैडो साइज 1, शैडो साइज 2, both will be equal. Then S1 equal to S2. नोट कर लो ये कंडीशन. If distances of the equal, angle of the fall of the light is equal, then only shadow of the same object will be equal. अगर इन दोनों कंडीशनों में से एक भी किल हो गया तो शैडो का साइज अलग अलग हो जाएगा. कोई बच्चा बोलता है सर आप फिगर से बता सकते हो? यस, ऐसे देखो, इफ, ध्यान से देखना, D1 इक्वल टू D2 बट θ1 is not equal to θ2, then S1 is not equal to S2. एक और चीज देखो, if D1 is not equal to D2 but θ1 is equal to θ2, then also shadow 1 is not equal to shadow. Not equal, not equal, equal. सभी बच्चे ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रा द फिगर. सभी बच्चे, शैडो साइज कब इक्वल होता है, कब नहीं होता? S stands for shadow size. Theta and theta dash are called angle of glance. Theta and theta dash are called angle of glance. D1 and D2 are called distances of sources of light from object. Distances of sources of light from object. Okay बेटे,
अब हम सेकंड असाइनमेंट पे आएंगे। सेकंड असाइनमेंट, शाबाश एवरीबॉडी। सेकंड असाइनमेंट, ऐसी असाइनमेंट जिसपे ये फिगर बना है बेटे, देख लो सभी बच्चे। सेकंड असाइनमेंट जिसपे ये फिगर बना है। अब आपका कंपटीशन है। नाउ देयर इज कंपटीशन अमंग द क्लासेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आएगा मजा। देखते हैं आज कौन सी क्लास जीतती है। लेट मी ड्रा दी सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शंस हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट एबल सेक्शन, then I should write Arjuna section. Okay, then I should write Burlock section, then I should write Bharat Ratan, then I should write Emmy section. Aurora bhi hai. Okay, Aurora section, Emmy section. एक भारत और भी तो ना, भारत विनोदाचार्य, विद्रोणाचार्य। ओके 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 बेटे, एमी लिख देते हैं, भारत रत्न भी है। ओके, एमी सेक्शन, और कौन सा, विनोदाचार्य सेक्शन। हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन। 3 4 5 6 7, कौन सा बच गया, भारत रत्न लिख दिया, यस। एबल, कौन सा बच गया बेटे, ग्रैमी बच गया। ओके, अब आपका स्कोर बनेगा क्वेश्चंस। गेट रेडी, एवरी आंसर इज 10 मार्क्स। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सी। फर्स्ट में बाद में आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, a student observes a tree using a pinhole camera. She decreases the distance between the tree and the camera. Okay, and looks at the tree through the camera again. The image formed as shown. जैसे ही पेड़ को नजदीक लाया जाएगा क्या हो जाएगा, what can be concluded from the image? शाबाश। farther the object, larger the erect image, farther the, पहली बात तो inverted। okay, अब raise your fingers accordingly। Sir, see option. Sir, see option. बोल के नहीं, बोल के नहीं। either 1 finger, 2 finger, 3 finger, 4 finger। raise your fingers। एबल को मिलेगा, बिल्कुल सही, एबल को। गई। अर्जुना गॉट इट, ग्रैमी गॉट इट, Sir, विद्रोना गॉट इट, एमी got it, और हेलो सर। सर, द्रोणाचार्य सेक्शन रह गया। ओके ओके ओके, ब्लॉक, द्रोणाचार्य सेक्शन। भारत रत्न, व्हाट इज योर आंसर? ओके, शाबाश। सारे स्कूल का अरोरा, अरोरा का व्हाट इज सर। अरोरा का आंसर क्या है? Sir, please write द्रोणाचार्य section. हाँ जी बेटे, द्रोणाचार्य। So you have did not mention the द्रोणाचार्य section. ये देखो ना, बताया बेटे, ये देखो, ये देखो, द्रोणाचार्य ने यहाँ पर बोर्ड पे तो लिखा हुआ है Sir, विद्रोह। not a VCDR. हाँ, तो इसमें गलत मेंशन कर दिया इसका मतलब। तो लेट्स कॉल द्रोणाचार्य। स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पर आपके। ओके, तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 नाउ, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड पिनहोल कैमरा? ओके, अरोरा को मिलेगा, एमी को, एमी का कोई आंसर ही नहीं। भारत रत्न को मिलेगा, पहले मैं लगा दूं, अरोरा को, भारत रत्न को, शाबाश।
एबल को, यस एबल, गुड स्कोर। और देन योर द्रोणाचार्य, वेरी गुड। अरोरा को, अरोरा, अरोरा का आंसर क्या है भाई? अरोरा का आंसर, व्हाट इज द आंसर बाय अरोरा? फर्स्ट क्वेश्चन, कोई बता ही नहीं रहा अरोरा में। हाँ बता रहा है, शाबाश। ब्लॉग, ब्लॉग में को, ब्लॉग बेटे, ब्लॉग। ओके, ब्लॉग मिलेगा। एमी, व्हाट इज द आंसर बाय एमी? एमी, एमी, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब बच गया एक ही सेक्शन बचा, ग्रैमी, व्हाट इज द आंसर ग्रैमी को? बट ये तो ड्रा हो गया, सभी बच्चों ने इसका सही बताया। डी ऑप्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। इसका मतलब अभी तक मैच ड्रा है। देखते हैं कौन लीडिंग निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने लगे हम। 4, शाबाश। लेट्स सी हु टेल्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। In the pinhole camera, what happens when the distance between the object and pinhole camera is increased? जब इंक्रीज करा जाएगा तो इमेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? शाबाश। अर्जुना को मिलेगा, एबल को मिलेगा, ग्रैमी को मिलेगा, एमी को मिलेगा, भारत रत्न को मिलेगा, अरोरा को मिलेगा, बुर्लॉग को मिलेगा, द्रोणाचार्य को मिलेगा। शाबाश, ये भी ड्रा हो गया। अगर और हमारा इससे इमेज छोटा हो जाएगा बेटे। शाबाश, अभी तक मैच ड्रा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए ऑप्शन देना था। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर? A student observes the image of the candle flame in the pinhole camera is inverted. What is the best explanation for this observation? Sasi. See. Sasi. अरोरा को मिलेगा, शाबाश। भारत रत्न को मिलेगा, एमी को मिलेगा, अर्जुना को मिलेगा। बुरलॉग का क्या आंसर है? कैमरे की तरफ करो बुरलॉग, शाबाश मिलेगा। द्रोणाचार्य को भी मिलेगा, एबल को मिलेगा और ग्रैमी को मिलेगा। ये भी ड्रा हो गया यार, सभी को मिल गया। ये तो कंपटीशन कब होएगा? अभी तक एवरीबॉडी 40 स्कोर, इक्वल मैच। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी हु आंसर। What happens if the aperture of the pinhole camera is increased? अगर अपर्चर का पिनहोल कैमरा में साइज, सुराख का साइज बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? अर्जुना को मिलेगा, बहुत अच्छे। भारत रत्न को मिलेगा, एमी को मिलेगा। अर्जुना को, भारत रत्न को, एमी को, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अरोरा को, अरोरा का बेटे हाँ मिलेगा। बुरलॉग मिलेगा, द्रोणाचार्य मिलेगा, एबल मिलेगा, ग्रैमी मिलेगा। ये क्या होगा? सबको आता है ये तो ये 4 5 टिक्स टू एवरीबॉडी। अभी तक सभी बच्चे 50 मार्क्स पर है। 5 टिक्स टू एवरीबॉडी सो फार। लेट्स डिस्कस फर्दर क्वेश्चन। हम असर्शन रीजन बेटे, अब तो असर्शन रीजन आ गया। पिनहोल कैमरा कैन capture color photograph. Pinhole camera use a lens to separate and capture colors. सुन लो, assertion reason, अगर कोई बच्चा सोचता है दोनों सही है तो उसको सिंगल फिंगर खड़ा करना है। अगर बोलता है assertion सही ये गलत तो डबल फिंगर, ये गलत ये सही, ट्रिपल फिंगर। और अगर दोनों गलत हैं तो 4 फिंगर्स खड़ी करनी है आपको।
शाबाश, चूज योर आंसर। पिन होल कैमरा कैन कैप्चर कलर फोटोग्राफ्स। और दूसरी बात, पिन होल कैमरा यूजेस ए लेंस। ओके, किसका आंसर सही है? भारत रत्न को मिलेगा, एमी को मिलेगा, अरोरा को मिलेगा, बुरलॉग को मिलेगा, अर्जुना को मिलेगा, एबल को मिलेगा, द्रोणाचार्य को मिलेगा, ग्रैमी को नहीं मिलेगा। सिर्फ ग्रैमी का गलत हो गया, बाकी सबका सही। ठीक ठीक ठीक। बेटे पिनहोल कैमरा में लेंस थोड़ी यूज करते हैं हम। मैंने कब बोला आपको लेंस यूज करना है? आपने लेंस वाला यस कर दिया, ग्रैमी ने। ओहो, तो ये वाला आंसर सही था किसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर यही ऑप्शंस में आपको बताऊं, व्हाट इज हाउ मेनी फिंगर्स यू विल रेज? क्वेश्चन नंबर 7, a pinhole camera creates an image by allowing the light to pass through the small hole. The size of the aperture decides the brightness and clarity of the image of the pinhole camera. Okay, एबल को मिलेगा, अर्जुना को मिलेगा, भारत रत्न को मिलेगा, अरोड़ा को मिलेगा, ब्लॉग को मिलेगा, द्रोणाचार्य को मिलेगा, एमी को भी मिलेगा। नो आंसर बाय ग्रैमी। ग्रैमी का गलत हो गया। सही 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 सही। याद रखना, इस केस में दोनों ही सही थे। दिस इज द ऑप्शन इन 7th क्वेश्चन। क्या हो गया? ग्रैमी ग्रैमी स्टूडेंट्स पीछे रह गए हैं। अब हमारे पास केस स्टडी है, केस स्टडी। शाबाश, लेट मी रीड फॉर यू। एवरीबॉडी यू शुड आल्सो रीड। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटे। सर एबल की टिक नहीं लगी। किसकी? Okay. When we pass under the tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of the sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as the pinholes. These gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see the circular images of the sun. This is called natural pinhole camera. Question number 1. Which of the following act as the pinhole camera in the natural? Leaves act as pinhole camera, water droplets, gap between the leaves, none of these. Yes, what is your answer? अर्जुना को मिलेगा, इबर को मिलेगा, ग्रैमी को मिलेगा, द्रोणाचार्य को मिलेगा, बुरलॉग को मिलेगा, अरोरा को मिलेगा, भारत रत्न स्कोर गॉड गेट्स स्कोर, ग्रैमी। एवरीबॉडी करेक्ट। पत्तों के बीच में जो स्पेस होती है वहां से मिलता है। 1 2। गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 2। शाबाश, सेकंड बेटे। व्हाट इज योर आंसर? Which of the following is true about natural pinhole camera? The circular patches of the light formed on the ground are examples of the images. The circular patches are the pinhole images of the sun. We see circular images of the sun irrespective of the shape of the. All of the above is correct. Emmy gets this one. Bharat, Aura gets, Prolog gets, Arjuna gets, Abel gets. द्रोणाचार्य का आंसर क्या है? द्रोणाचार्य का गेट्स, और ग्रैमी को नहीं मिलेगा। बेटे ऑल ऑफ दी अबव सही है ना? डी बताना था आपने, ग्रैमी का गलत हो गया। बाकी सब करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, सी क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट पिनहोल कैमरा? टॉर्च, ट्रेसिंग पेपर, लेंस, मिरर।
ग्रैमी को मिलेगा, एबल को मिलेगा, द्रोणाचार्य गेट्स, अर्जुना गेट्स, फॉग वी गेट्स, रतन गेट्स, एमी गेट्स, एवरीबॉडी करेक्ट। ट्रेसिंग पेपर चाहिए। You get score, gets 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 score. Got it. Let's move to the other page. D question. Why is image formed in the pinhole camera dim compared to the actual object? Actual object की वजह के बजाय पिनहोल कैमरा में जो हमारा इमेज बनता है वो धुंधला क्यों बनता है? इसका आंसर कोई बच्चा, ये कंपटीशन में नहीं होएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी ऑप्शन ही नहीं है। अर्जुनों में से कोई बच्चा इसका आंसर दो। एनीबॉडी कम ऑन द माइक एंड टेल मी। शाबाश। Because the screen is translucent. Because Screen is a translucent. Screen is translucent. okay. Good job. Okay, एमी में से कोई आंसर देगा इसका? एमी में से प्लीज कम ऑन द माइक। Screen is translucent. The screen is translucent. जो ट्रेसिंग पेपर होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है बेटे, उसमें पूरी लाइट नहीं निकल पाती, इसलिए बैक साइड से जब हम देखेंगे तो हमें ब्लड दिखेगा। अब एक्लिप्स के क्वेश्चन में मैच शुरू हो गया, 7 क्वेश्चंस। अब देखते हैं कौन आगे निकलेगा, ठीक है? लेकिन अभी तक हम स्कोर लिख लेते हैं पहले। स्कोर कितना? 1 2 3 4 5 6 7। ग्रैमी के 70, 90, 90, 90, 90, 90, 90 and 90। अभी तक आपका ये स्कोर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 on the eclipse. An eclipse occurs due to reflection of light, refraction of light, blocking the light by celestial body, bending of the light around the object. What is your answer? Emmy gets marks, Arjuna gets, Aroda gets, Pralog gets, Dronacharya gets, Abel gets, Grammy gets, Emmy भी gets। सारे का सही बेटे, शाबाश। ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट्स। तो सभी बच्चों के हाँ जी +10 मार्क्स, +10 मार्क्स, +10 मार्क्स। एक मिनट बेटे, आपकी बात सुनता हूँ, रुक जाओ। +10, यस। सर 10 बन रहे हैं, इससे पहले 10 बन रहे हैं, आपने सबको 90 दिए। ओके चलो कोई बात नहीं, बराबर ही दी है ना, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स which celestial body is positioned between earth and sun? सोलर एक्लिप्स में ओके, सोलर एक्लिप्स में कौन अंदर होएगा? ओके, ग्रैमी गेट्स, एबल गेट्स, द्रोणाचार्य गेट्स, अर्जुना गेट्स, बुरलॉग गेट्स, रोरा गेट्स, भारत रत्न। अरे एमी का क्या स्कोर है? एमी क्या कह रहा है? एमी कह रहा है सोलर एक्लिप्स में सेंटर में वीनस होता है। कौन सा आंसर है भाई एमी का? अच्छा, मून, बाद में करेक्ट कर दिया आपने। सभी को मिलेगा, शाबाश। तो एवरीबॉडी गेट्स 10 मार्क्स। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10। ओके, और सब एक मैंने कम काउंट करा था, उसका भी 10 लगा देते हैं इसमें, क्योंकि ग्रैमी के 3 गलत हुए थे ना, उसके हिसाब से 100 होना चाहिए। वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था, शाबाश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स? कैन बी सीन लिखा हुआ है, रिमेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स? सोलर फ्लेयर्स, sun's corona, sunspot, earth shadow। Very good,
जो साइडों से प्लेट सी दिखती है ना, रिंग दिखता है, उसको क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? वेरी गुड, ग्रैमी को मिलेगा। ओए, इस बार तो गलत है कई बच्चों का, इसलिए सोच के आंसर लगाना पड़ेगा। पहले तो ग्रैमी को मिलेगा। ओके, देन एबल को, एबल को मिलेगा, एबल को मिलेगा, शाबाश। देन व्हाट इज द स्कोर बाय भारत रत्ना मिलेगा। व्हाट इज द स्कोर बाय एमी, एमी का क्या है? व्हाट इज द स्कोर बाय अरोरा, अरोरा को मिलेगा, शाबाश। ओके, अर्जुना को भी मिलना चाहिए, अर्जुना का भी सही है। बुरलॉग का क्या, बुरलॉग का व्हाट इज द आंसर बाय बुरलॉग? बुरलॉग में कोई आंसर ही नहीं दे रहा, कैसी क्लास है? बुरलॉग में कम हार गए क्या एक्सक्यूज मी सर, यार? सर हमें द्रोणाचार्य को मार्क्स नहीं मिले। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, यस, +10। ओके, और 1 2 3 4, और बुरलॉग का गलत हो गया भाई, 2 बच्चे पीछे रह गए हैं इस बार। ओके, डाउन डाउन, इसका आंसर था सन्स कोरोना। क्वेश्चन नंबर 5, why does a solar eclipse occurs on every new moon day? The sun is too far, the moon is too small, the moon's orbit is titled, the earth rotates too fast. What is the answer? ओके, शाबाश। आपको इसको मिलेगा, एबल को मिलेगा, एबल को मिलेगा, एमी को मिलेगा, अर्जुना को मिलेगा। बस 3 ही सेक्शंस हैं। नहीं नहीं, इसको भी, अरोरा को भी मिलेगा, अरोरा, अरोरा को मिलेगा। सर भारत, ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न का क्या आंसर है? शाबाश शाबाश। द्रोणाचार्य ऑप्शन नंबर सी। ओके, द्रोणाचार्य को भी मिलेगा, एमी को, ये तो सब। नहीं, एबल का क्या था, एबल का क्या आंसर है? हाँ ठीक है, अर्जुना का, अर्जुना का, बहुत अच्छे, सारे स्कूल का ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसका आपको सी बताना था। +10, +10, +10, +10, +10, +10, +10, +10, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, what is the main difference between the penumbra and umbra in the shadow formation or penumbra light outer region of the shadow and umbra is the dark? Okay, Grammy gets, Abel gets, द्रोणाचार्य gets, अर्जुना, अर्जुना, अर्जुना का क्या आंसर है? मिक्स आंसर आ रहा है, कोई 3 फिंगर्स बता रहा है, कोई डबल। जो दोबारा से बताओ, अर्जुना का व्हाट इज, अर्जुना का फाइनल आंसर। अर्जुना का गलत हो गया, नहीं मिलेगा। बुरलॉग, बुरलॉग गेट करेक्ट, अरोरा गेट्स, भारत रत्न गेट्स, एमी गेट्स, अर्जुना को, अरे अर्जुना ने बाद में सही कर दिया क्या? ओके, अर्जुना को भी मिलेगा, शाबाश। तो सभी बच्चों ने इसका सेकंड ऑप्शन बताया, इसलिए सभी बच्चों को +10, +10, +10, +10, प्लस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा आगे निकलेगा। काइंडली आइडेंटिफाई ए फिगर एंड आइडेंटिफाई बी फिगर। ये तो क्वेश्चन ही और तरह का है। ए फिगर में बता दो, चलो ए फिगर में कौन सा एक्लिप्स है? चलो इसको छोड़ दो। ओके, ये पहले ए फिगर में बेटे सोलर एक्लिप्स दिखा रखा है, और बी फिगर में आपको अच्छे से पता है, जो डार्क रीजन है उसको अमरा बोलते हैं, जो सेमी डार्क रीजन है उसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं, राइट? अब स्कोर काउंट करते हैं, शाबाश, योर स्कोर, सभी बच्चे ध्यान से देख ले। वेरी गुड, वेरी गुड, ह्यूज स्कोर।
100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 160. एक्सक्यूज मी सर यस बेटे, सर इन सेवंथ लूनर ए का सर लूनर एक्लिप्स नहीं आएगा सेवंथ में हाँ ल्यूनर ल्यूनर, शाबाश शाबाश। सेवंथ का जो ए फिगर है ना वो ल्यूनर इक्लिप्स आएगा। ओके, 160 मार्क्स, 160 मार्क्स, 150, 160, 150, 160, 120। तो ये बच्चे टॉपर निकले। कौन सा? अर्जुना, अनदर वन एबल, अनदर वन अरोरा, अनदर वन भारत रत्न, अनदर वन द्रोणाचार्य। तो आज मैं इनके नोट कर लेता हूं, अगली बार मैं इन्हीं सेक्शन से मुश्किल वाले क्वेश्चन पूछूंगा। मैं इनके नोट कर लेता हूं जो बच्चे। हाँ जी बेटे, अरोरा, अर्जुना और किसके 160 हैं? एबल के, भारत रत्न के, और किसके हैं? द्रोणाचार्य। ये बच्चे बेस्ट है, इनसे मैं और भी मुश्किल पूछूंगा अगली बार। देखते हैं फर्स्ट कौन निकलता है। आज का लेक्चर, कुछ बच्चा कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, वरना वी विल वाइंड अप। सभी बच्चे ये ध्यान से सुन लें, जो 7th क्वेश्चन का फिगर नंबर ए है उसमें मेमोरी टूल देखो, SEM, सेम। इसका मतलब ये ल्यूनर एक्लिप्स है, ल्यूनर एक्लिप्स। नोट कर लो, फर्स्ट फिगर ल्यूनर एक्लिप्स। ओके, तो इस तरह से हमने आज का कोई पेपर वाइंड अप करा। जितने बच्चों को अच्छा लगा आज का, प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड जिनको अच्छा लगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेट्स वाइंड अप हियर। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चों को बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स, और थैंक यू वेरी मच टू द टीचर्स हु मेंटेन्ड सो गुड डिसिप्लिन।